Dear students, I am going to deliver a talk on the mechanism of sulfonation reaction. You already know that replacement of hydrogen by sulfonic acid group is called sulfonation. But when sulfonic acid group replaces hydrogen from the aromatic ring, it is named as electrophilic aromatic substitution reaction. So, the replacement of H atom from benzene ring by sulfonic acid group is known as sulfonation. But when H atom of an aromatic hydrocarbon is replaced then it is called as electrophilic aromatic substitution reaction. So this is an introduction regarding sulfonation, and our intention or contention is to deliver a talk in reference to benzene only, not about the substituted benzenes, but particularly in benzene. So the replacement of hydrogen atom from benzene ring by sulfonic acid group is known as sulfonation. But when hydrogen atom of an aromatic hydrocarbon is replaced, then it is called as electrophilic aromatic substitution reaction. This aromatic hydrocarbon, the aromatic hydrocarbon, in reference I have taken benzene only. So we can write a reaction to show the sulfonation as say this is benzene, hydrogen is exposed or ejected out, the H2SO4 this is H2SO4, 2 molecules of H2SO4 is used. The product is benzene sulfonic acid plus H2O. 2 molecules of H2SO4. We can use fuming sulfuric acid or concentrated sulfuric acid. We can use either oleum. Oleum means a mixture of H2SO4 plus SO3 or
concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4. This hydrogen has gone out. This has come to this position. So it is the benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. This reaction is reversible. Sulfonation is a reversible process. Sulfonation is a reversible process. Reversible process, kinetically studied, or in other words, all steps of sulfonation is reversible. In other words, all steps of sulfonation is reversible. Always remember, the sulfonating agent is oleum or concentrated H2SO4. All steps of reversible. I have shown the example of sulfonation of benzene. We have obtained the product benzene sulfonic acid. Now I am going to show the mechanism. The mechanism of sulfonation. Mechanism of sulfonation. This has 3 steps. As पहले स्टेप में सल्फोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तथा तीसरे स्टेप में उस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो स्टेप फर्स्ट, इन दिस स्टेप two molecules of H2SO4, 2 molecules of H2SO4, remember concentrated or fuming, interact, आपस में क्रिया करते हैं, interact and produce the sulfonium ion or sulfur trioxide electrophile. Sulfur trioxide electrophile. This sulfonium ion is positively charged electrophile and sulfur trioxide is neutral electrophile. Both are in rapid equilibrium. Both are present. Both are in equilibrium. During reaction. Shown as, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि सल्फोनेशन के प्रत्येक स्टेप्स रिवर्सिबल है, काइनेटिकली स्टडीड मैकेनिज्म है। पहला स्टेप में जनरेशन होना है सल्फोनियम आयन अथवा सल्फर ट्राईऑक्साइड का। दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल हैं और दोनों ही रैपिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। बोथ आर इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखिए कैसे होता है। एक सल्फर
एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए दोनों तो है कहने के लिए एसिड है, लेकिन एक एसिड जैसा काम करता है, दूसरा बेस जैसा काम करता है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह प्रोटॉन इसको देता है ऐसे, तो ऑक्सीजनियम आयन बनता है। तो जब प्रोटॉन यह दे रहा है तो यह सल्फ्यूरिक एसिड तो है, तो एक्ट एज एसिड, लेकिन दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड बेस जैसा बिहेव करता है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो दिस एक्ट्स एज बेस, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो बनेगा क्या, एच ऑक्सीजनियम आयन बनेगा, SOOH प्लस ये जो बनेगा हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, दिस इज H2SO4 या हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये हाइड्रोजन सल्फेट है, ये बन गया ऑक्सीजनियम आयन बना, ऑक्सीजनियम आयन। ये ऑक्सीजनियम आयन वाटर लूज करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर प्लस H2O हो गया, वाटर यहाँ से निकल गया वाटर, इसका बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया, जिससे उसका रिगेन, उसका जो करेक्टर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होने का, वो मेंटेन हो जाता है। तो ये बन गया, और यहाँ पर क्या बना कि ये प्लस ऐसा OH, ये सल्फोनियम आयन बना, इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फोनियम आयन, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। अब होता क्या है कि यह इसके अंदर भी एसिडिक करेक्टर है। देखिए यह जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है ऐसा। तो होता क्या कि यह प्रोटॉन वाटर का प्रोटोनेशन हो जाता है, ये अपना को इसको दे देता है, तो फिर इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो होगा क्या कि यह SO3 में बदल जाएगा, ये SO3 में बदल जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, प्लस ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को समझना चाहिए कि दो तरह की इलेक्ट्रोफाइल, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड और दूसरा सल्फोनियम आयन, दोनों ही हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम में है, मानी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आते हैं। तो चाहे तो आप सल्फोनियम आयन से लेकर के सल्फोनेशन शो कर सकते हैं, अथवा सल्फर ट्राई ऑक्साइड से लेकर के सल्फोनेशन शो करते हैं। यह भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फोनेशन में काम आता है, और यह भी सल्फोनेशन में काम आता है। किसी को आप यूज़ कर सकते हैं। यदि इसको लेंगे तो रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा हो जाएगा, इसको छोड़ करके इसको लेंगे तो रिएक्शन 3 स्टेप में पूरा होगा, फिर इसको प्रोटोनेट लास्ट में करना पड़ेगा। सुविधा के लिए मैं इसको टेकअप करता हूँ, अपने सुविधा के लिए हम इसी के साथ सल्फोनेशन का मैकेनिज्म आगे बढ़ाएंगे। तो पहला स्टेप में ये जनरेट हो गया। फिर मैं रिपीट करता हूँ, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं अथवा कंसनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं। इनमें एक जो है जो एसिड जैसा बिहेव करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये कैटलिस्ट है, प्रोटॉन दे दिया बच गया, बाद में यह प्रोटॉन अपना खींच लेता है। और यह जो है इससे जनरेट होता है व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो यह जो एसिड है दिस इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, ये इलेक्ट्रोफाइल
फाइल जनरेटर, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने वाला। किसी एक को जनरेटर मान सकते हैं, इसको मान लीजिएगा तो इससे प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है। और यह जो है कैटलिस्ट का काम करता है, प्रोटॉन देता है, बाद में प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है कार्बोकेटाइन से, तो एक कैटलिस्ट के रूप में काम आता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है तो बदल गया किसमें, सल्फोनियम आयन में बदल गया जो इलेक्ट्रोफाइल है, अथवा सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल गया जो इलेक्ट्रोफाइल है। दोनों ही इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। सल्फोनेशन का मैकेनिज्म इसमें किन्हीं एक से शो कर सकते हैं। सुविधा के लिए मैं इसको टेकअप कर रहा हूँ। दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकेंड, स्टेप टू, ये जो स्टेप है तो जनरेशन का, स्टेप सेकेंड, स्टेप टू, सल्फोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल attacks on benzene and produces a carbocation intermediate, which is resonance stabilized, यह काम धीरे धीरे होता है। दिस इज स्लो प्रोसेस, दिस इज स्लो स्टेप, hence rate determining step, हम रिएक्शन शो करने जा रहे हैं। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, बेंजीन, SOOH, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हाइड्रोजन छिपा हुआ है, मैं पाई इलेक्ट्रॉन को इस पर अटैक करा रहा हूँ ऐसे। ये रिएक्शन स्लो होता है और रिवर्सिबल है, हमेशा ध्यान रखना है, या ईच स्टेप इज रिवर्सिबल। जो छिपा हुआ हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट कर दिया, ये ऐसा इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये यहाँ आ गया और ये ऐसे आ गया। ये कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये ऐसा रहेगा। ये हम इसको SO3H लिखते हैं कई बार। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ बनाता हूँ, ये यहाँ शिफ्ट करेगा ऐसे, तो यहाँ ऐसा आ गया, ऐसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, SO3H, इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे जनरेट हो गया। तो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, सबको मिलाकर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, SO3H। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ से हमका इसका डिलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, यहाँ बीच में पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है,
और ये कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अब इसमें जो दो तीन चीज़ें नोट करनी इम्पोर्टेंट हैं। यह जो कन्वर्जन हो रहा है बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन मोर स्टेबल, कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। तो पहला पॉइंट ये है, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन the carbocation intermediate, तो बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। बेंजीन एरोमेटिक है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो जब कोई एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट होता है, जब कोई सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी गेन करता है। तो यह जो कन्वर्जन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एंडोथर्मिक कन्वर्जन। दिस इज एंडोथर्मिक कन्वर्जन। व्हाट कन्वर्जन? कि मोर स्टेबल बेंजीन का कन्वर्जन इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में हो रहा है। तो दिस इज एंडोथर्मिक कन्वर्जन। ये नॉन एरोमेटिक है, आप यहाँ लिख सकते हैं नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, या आयन में लिख दिया है नॉन एरोमेटिक आयन है, और बेंजीन के लिए लिख दिया दिस इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वह इसकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यह जो स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यह है कि इसके पास एनर्जी कम है, और यह लेस स्टेबल है, इसका मतलब कि इसके पास एनर्जी अधिक है। तो एनर्जी कहाँ से मिला उसको? इस रिएक्शन से एनर्जी मिला। तो यह स्टेप जो बन रहा है कार्बोकेटाइन का, ऐसा प्रोसेस है। दिस इज एंडोथर्मिक कन्वर्जन, और यही जो है रेट डिटर्मिनिंग भी है। तो इसका में अगला पॉइंट ये है कि रेट स्लो है, इसलिए रेट डिटर्मिनिंग है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब चूंकि हमको कई कंपाउंड नहीं लिखना है, क्योंकि हमको तो इस पर्टिकुलरली बेंजीन के एग्जाम्पल से समझाना है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये जानते रहिए। तो इस स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। अब इस कार्बोकेटाइन से यह जो हाइड्रोजन है, मेन लक्ष्य तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन को निकालना है और सल्फोनिक एसिड ग्रुप को लाना है। अब इसको निकालने की क्रिया तीसरे स्टेप में होती है। वो तीसरे स्टेप में क्या होगा कि स्टेप 3 में जो पहले स्टेप में बना हुआ था हाइड्रोजन सल्फेट, वह इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो तीसरे स्टेप में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ आयन, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम दी कार्बोकेटाइन किसके द्वारा? बाय हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट एनायन एंड formation of the product and formation of the substituted product, तो यह इसमें देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो हम अभी आपको समझाएंगे कैसे क्या होगा, उसमें किस तरह का थर्मल चेंज आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैं
एक इसमें से हम कार्बोकेटायन बाहर निकाल लिया। मैकेनिज्म समझाने के लिए H है, SO3H है। अभी तक का जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज, ये कार्बोकेटायन है, नॉन बेंजोनॉइड है, नॉन बेंजीनॉइड केटायन है, बेंजीनॉइड कार्बोकेटायन है। नॉन बेंजीनॉइड कार्बोकेटायन का मतलब ये हुआ कि इसमें रिंग के अंदर बेंजीनॉइड कैरेक्टर नहीं है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बेंजोनॉइड है। अब इसको रिएक्शन आप करेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लेगा। ये हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट आयन हो गया, या एनायन कह सकते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बहुत फास्ट होता है, तेज़ी से अब्स्ट्रैक्ट करता है। और अब क्या होगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बैक टू रिंग हो जाता है, और जब रिंग में चला जाता है तो यह जो सिस्टम है बेंजोनॉइडल हो जाता है। अब ये सिस्टम बेंजोनॉइडल हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर SO3H बन गया। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट है, और यह किसके साथ मिल करके H2SO4 बना देगा। H ऐसा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एनर्जी चेंज देखिए। नॉन बेंजीनॉइड कार्बोकेटायन है, हाई एनर्जी है इसके पास, हाई एनर्जी है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम जो नॉन बेंजोनॉइडल होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। अब इस सिस्टम को देखिए, यह एनर्जी कैसी हो जाएगी, बेंजोनॉइडल कैरेक्टर है तो इसकी एनर्जी लो हो गई, लो एनर्जी कंपाउंड है। तो हायर एनर्जी से स्टार्ट किया और लो एनर्जी का प्रोडक्ट बना, इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकल गई। स्टेबल ये है, लो एनर्जी का है, तो बाकी जो हाई एनर्जी था लो एनर्जी में तो डिफरेंस क्या हुआ, वो बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन कैसा होगा, दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस तरह से मैंने आपको सल्फोनेशन का मैकेनिज्म समझाया, और मैकेनिज्म के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो जनरेशन ऑफ दिस सल्फोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल, जिसको मैंने भली बात समझा दिया कि इसमें फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या कंसनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं सल्फोनेशन के लिए। इससे 2 तरह की इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है, सल्फोनियम आयन भी जनरेट होता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी जनरेट होता है, दोनों ही रैपिड इक्विलिब्रियम में होते हैं। किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फोनियम आयन में बदल जाएगा, सल्फोनियम आयन सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए अपनी क्या रिकमेंडेड जो इंटरनेशनल बुक्स के में जो मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ले लिया, हाइड्रोजन सल्फोनियम आयन मैंने टेकअप कर दिया। आप ये SO3 का भी दिखाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। फिर दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, दूसरे स्टेप में उस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक हुआ, उस अटैक से कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना। वह कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल था, और उसमें एनर्जी का जो चेंज हुआ वो स्लोली होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो स्लो स्टेप है। एनर्जी का जो चेंज होता है कि लो एनर्जी कंपाउंड से चल करके हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मिल रहा है, लो एनर्जी बेंजीन से चल करके हाई एनर्जी कार्बोकेटायन मिल रहा है। तो इसमें भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी है। तो वह डिफरेंस ऑफ एनर्जी कहाँ से आई, यानी एनर्जी सिस्टम ने या प्रोसेस ने एनर्जी को गेन किया, हीट एनर्जी को गेन किया। तो वह जो सेकेंड स्टेप है वह एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
और लास्ट थर्ड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप का बना हुआ हाइड्रोजन सल्फेट एनायन है वह कार्बोकेटायन से हाइड्रोजन को ऑफसेट कर लेता है और यह बॉन्ड पेयर जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बैक हो जाता है। तो यह जो नॉन बेंजीनोइडल सिस्टम यहाँ पर था अब वो बेंजीनोइडल सिस्टम में कन्वर्ट होता है और इस सिस्टम प्रोडक्ट की एनर्जी लो हो गई है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस कुछ आता है और बाहर ऊर्जा निकलती है, इसलिए यह स्टेप जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इतना ही बात, जिसमें फिर अगला मैं वीडियो जो है किसी न किसी सब्स्टिट्यूशन के किसी मैकेनिज्म को टेकअप करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।